شمالی پنجاب کے ایک ویران پہاڑی علاقے میں ایک پرانی حویلی تھی جسے لوگ ہنسی او کہتے تھے۔ یہ نام عجیب تھا کیونکہ وہاں کبھی ہنسی نہیں سنی گئی تھی۔ اصل میں یہ حویلی کسی زمانے میں ایک راجا کی تھی جس نے اپنی بیوی کو بے وفائی پر زندہ دیوار میں چنوا دیا تھا۔ بیوی کی بدرو وہاں پھنسی تھی اور کہا جاتا تھا کہ جو کوئی اس حویلی میں رات گزارے وہ تو مر جاتا ہے یا اسے ہمیشہ کے لیے پیار کا جنون ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے آزے اور عدنان کی۔ آزے 25 سال کی خاموش کتابی طبیعت کی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں گہرے سمندر تھے۔ وہ اردو ادب میں ایم اے کر رہی تھی اور پرانی عمارتوں، بھوتنی کہانیوں اور خاص طور پر قبرستانوں کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مردہ لوگ زندوں سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ عدنان اس کی بالکل ضد تھا۔ وہ 27 سال کا عملی انجینئر اور ہر چیز کا سائنسی ثبوت مانگنے والا تھا۔ اسے مافوق الفطرت چیزیں احمقانہ لگتی تھیں، لیکن وہ آزے سے پاگلوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس کے دل میں بجلی گراتی تھی، اس کی ہنسی اسے بھولا بنا دیتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں وہ پن تھا جسے وہ پوری زندگی سمجھنے کے لیے تیار تھا۔ ان کی محبت 2 سال پرانی تھی، لیکن جیسی ابھی کل ہی شروع ہوئی ہو۔ ایک دن آزے نے عدنان کو کہا، میں اس حویلی میں جانا چاہتی ہوں۔ عدنان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، بھوتنیوں والی، تم پاگل ہو گئی ہو۔ آزے اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی، عدنان، میں نے اپنی زندگی میں ہر وہ چیز دیکھ لی ہے جو زندہ لوگوں میں ہے، دوستی، دھوکہ، محبت، نفرت۔ اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تم مجھے روکو گے؟ عدنان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جانتا تھا کہ جب آزے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو پوری دنیا بھی اسے نہیں ہلا سکتی۔ اس نے آہ بھری اور بولا، تمہاری ساتھ چلوں گا، لیکن اپنے سارے سائنسی آلات لے کر، اور شرط ہے کہ اگر کچھ عجیب ہوا تو فوراً واپس آنا ہے۔ آزے نے اس کے گال پر بوسہ دیا اور بولی، تم بہت اچھے ہو عدنان۔ انہوں نے جمعہ کی رات جانے کا فیصلہ کیا۔ عدنان نے اپنی گاڑی میں 2 مشعلیں، ایک ریکارڈنگ ڈیوائس، 2 کمپاس، تھرمل کیمرہ اور ایک پرانا ریڈیو رکھا۔ آزے نے اپنی ڈائری، موم بتیاں، ایک پرانی کتاب جس میں جھاڑ پھونک کے وظیفے تھے، اور اپنی ماں کا ایک ہار جسے وہ ہمیشہ پہنتی تھی، پرس میں رکھ لیا۔ انہوں نے شام 4 بجے گھر سے نکلا۔ راستے میں عدنان نے آزے کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم جانتی ہو میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اگر واقعی وہاں کوئی بھوت ہے تو میں اس سے لڑوں گا۔ وہ آزے ہنسی، بھوت سے لڑائی؟ تم سائنس والے عجیب ہو۔ لیکن اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ کچھ ہونے والا ہے۔ سورج ڈھلنے سے پہلے وہ حویلی کے قریب پہنچ گئے۔ یہ پہاڑی کی چوٹی پر بنی تھی جس کے چاروں طرف گھنے ببول اور سفیدے کے درخت تھے۔ حویلی کی دیواریں کالی پڑ چکی تھیں، جھروکے ٹوٹے ہوئے تھے، اور بڑا سا دروازہ آدھا کھلا تھا جیسے کسی نے ابھی دھکیل کر چھوڑ دیا ہو۔ دروازے پر ایک تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا، یہاں کبھی ہنسی نہیں آئی اور کبھی پیار واپس نہیں گیا۔ وہ عدنان نے تختی پڑھ کر کہا، شاعری یقیناً کسی ادب کے پاگل نے لکھی ہے۔ آزے نے اسے خاموش کر دیا اور بولی، تم بے ادب ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک عورت نے سینکڑوں سال تک اپنے پیار کی سزا کاٹی۔ اس کی روح کو تمہاری مذاق اچھے نہیں لگیں گے۔ عدنان مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں پہلی بار ڈر تھا۔ ڈر نہیں بلکہ آزے کی گہری روح کا خوف۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ حویلی کا صحن بہت بڑا تھا۔ بیچوں بیچ ایک سوکھا ہوا تالاب تھا جس میں بدبودار پانی کھڑا تھا۔ ارد گرد کمرے تھے، ان کے دروازے کھلے ہوئے، اور ہر کمرے سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی، جیسے گلاب اور مٹی اور لہسن کی بو کا مرکب۔ عدنان نے تھرمل کیمرہ نکالا اور اسکین کرنے لگا۔ اس نے کہا، کوئی گرمی کے نشان نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں انہیں ایک کمرے سے دھیمی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بہت دور ہو رہا ہو۔ آزے نے عدنان کی کلائی پکڑی اور کہی، تم نے سنی؟ عدنان نے کہا، وہ ہوگی لیکن وہ خود نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے وہیں صحن میں اپنا کیمپ لگا لیا۔ عدنان نے 2 مشعلیں جلائیں، کھانے کا سامان نکالا اور ایک چھوٹی سی آگ بھی جلا دی، حالانکہ موسم گرم تھا۔ آزے آگ کے پاس بیٹھ گئی اور اپنی ڈائری میں کچھ لکھنے لگی۔ عدنان نے اسے شرارت سے کہا، کیا لکھ رہی ہو؟ آزے بولی، آج کی رات کی پہلی سطریں۔
अगर मैं मर गई तो ये डायरी मेरे बाद लोग पढ़ेंगे। अदनान ने डायरी छीनकर इसे बोसा दिया और कहा, तुम नहीं मरोगी। मैं हूं ना ओ। लेकिन आज़े ने इसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने कभी सोचा है अदनान के मोहब्बत भी एक किस्म की रूह है। जिस्म तो मिट्टी है लेकिन मोहब्बत हवा में घुल जाती है। शायद इसीलिए भूत मोहब्बत करने वालों को पकड़ते हैं, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत की अक्कासी देखना चाहते हैं। अदनान खामोश हो गया। वो कभी इतनी गहरी बातों में नहीं पड़ता था। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। आग बुझ रही थी, सिर्फ अंगारे रह गए थे। आज़े ने अदनान के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर ली थीं। अदनान इसके बालों को सहला रहा था। अचानक तालाब से एक छपाक की आवाज आई, जैसे कोई पानी में कूदा हो। दोनों उछल कर बैठ गए। अदनान ने टार्च उठाकर तालाब की तरफ की। पानी बिल्कुल साकिन था, लेकिन पानी के किनारे गीली मिट्टी पर कदमों के निशान थे। नंगे पांव के निशान, छोटे जैसे किसी औरत के। आज़े ने बुड़बुड़ाया, वो आ गई। अदनान ने कंपास निकाला तो उसकी सुई पागलों की तरह घूम रही थी। इसने कहा, मकनातीसी फील्ड में खलल। साइंसी वजाहत है, लेकिन जब उसने थर्मल कैमरा उठाया तो इसमें एक रोशन नीला धब्बा दिखाई दिया, एक इंसान की शक्ल का, जो आज़े के बिल्कुल पीछे खड़ा था। अदनान ने चीख कर कहा, आज़े उधर आओ। आज़े ने मुड़कर देखा, कुछ न था, लेकिन इसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। ये वो लम्हा था जब हवेली बदलने लगी। उनके अर्ध गिर्द की दीवारों से आवाजें आने लगे, पहले सरगोशियां, फिर धीमी हंसी, फिर चीखें। दरवाजे खुद ब खुद खिलने और बंद होने लगे। अदनान ने आज़े का हाथ पकड़ा और बोला, हमें यहां से निकलना है। लेकिन जब वो हवेली के बड़े दरवाजे की तरफ भागे तो दरवाजा गायब था। इसकी जगह एक पक्की दीवार थी। वो दोनों घबरा गए। अदनान ने दीवारों को धक्का लगाया, लेकिन वो ठोस थीं। आज़े ने कहा, हम फंस गए। इसकी आंखों में खौफ था, लेकिन इसके साथ एक अजीब सुकून भी, जैसे ये इसकी तकदीर हो। अचानक तालाब का पानी उबलने लगा। इसके बीच से एक औरत निकली। नहीं, औरत नहीं, इसकी रूह। वो सफेद लिबास में थी, इसके बाल नीचे तक लटक रहे थी, इसका चेहरा सफेद बर्फ की तरह था और उसकी आंखें खाली खोखले सुराख थे। लेकिन इसके होंठों पर एक अजीब मुस्कुराहट थी, जैसे वो बहुत पुरानी दोस्त हो। इसने कहा, आवाज धीमी और टूटी फूटी, मगर सुनने में पत्थर की तरह भारी, सदियों के बाद कोई आशिक जोड़ा आया है। तुम में से किसी ने मेरी कहानी सुनी है? आज़े ने हिम्मत करके कहा, हाँ, आपके शौहर ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। रूह हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे मशलें बुझ गईं। शौहर? वो मेरा कातिल था। मैंने इसे कभी प्यार नहीं किया। मैं तो अपने आशिक के लिए मरी थी, जो इस रात हवेली में आया था, लेकिन शौहर ने इसे कत्ल कर दिया। मेरी रूह यहां इसलिए फंसी है कि मैं बगैर इश्क के मर गई। मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई। अदनान ने आज़े को अपने पीछे कर लिया और रूह से कहा, तुम क्या चाहती हो? रूह ने इसकी तरफ देखा। इसकी खाली आंखों में अचानक एक चमक आई, जैसे इसे अदनान में वो आशिक नजर आया हो। मैं चाहती हूं कि तुम में से एक यहां मेरे साथ रहे, हमेशा। इतनी मोहब्बत मेरे पास कभी नहीं आई जितनी तुम दोनों की आंखों में है। मैं वो मोहब्बत खाना चाहती हूं। आज़े ने अदनान का हाथ पकड़कर रूह से कहा, हम तुम्हें अपनी मोहब्बत दे सकते हैं, लेकिन अपनी जान नहीं। रूह ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और आज़े के चेहरे को छूने की कोशिश की। आज़े ने पीछे हिट कर कहा, हमें जाने दो। रूह बोली, एक रात यहां रहो। अगर तुम दोनों सुबह तक एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे तो मैं खुद ही तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुम में से किसी के दिल में जरा भी शक आया तो वो मेरे साथ रहेगा। अदनान और आज़े ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके पास कोई चारा नहीं था। वो राजी हो गए। रूह गायब हो गई और उनके गिर्द का मंजर बदल गया। वो अब सहन में नहीं बल्कि एक खूबसूरत कमरे में थे, जिसमें शमें जल रही थीं, फूलों की खुशबू थी और बीच में एक बड़ा सा बिस्तर था जिस पर रेशमी चादरें बिछी थीं। अदनान ने हैरत से कहा, ये जादू है। आज़े ने इसे समझाया, नहीं, ये इसकी ताकत है। वो हमें आजमाएगी। वो दोनों बिस्तर पर बैठ गए। आज़े ने अदनान के सर को अपनी गोद में रखा और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। इसने कहा,
तुम्हें मालूम है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी मुझे लगा था कि तुम वो शख्स हो जिसके बारे में मैंने हमेशा ख्वाब देखा था। अदनान ने इसकी तरफ देखा, इसकी आंखों में आंसू थे। आज़े, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि अगर ये रूह मुझे ले जाना चाहे तो मैं खुद को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें आजाद रखूंगा। आज़े ने इसके होंठों पर उंगली रख दी। खामोश। हम एक हैं, दोनों कोई नहीं। रात गुजरने लगी। उन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों की हर याद को दोहराया। पहला मलना, पहला झगड़ा, पहली बार जब उन्होंने एक दूसरे को ऐ मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहा था, पहली बार जब वो बारिश में भीगे थे, पहली बार जब आज़े ने अदनान के लिए खाना बनाया था जो जल गया था मगर अदनान ने इसे बहुत शौक से खाया था। और वो रात जब अदनान ने आज़े के वालिद से इसका हाथ मांगा था। वो हंसे रोए, एक दूसरे को छुआ और अपनी मोहब्बत को बार बार दोहराया। लेकिन आधी रात के करीब कुछ बदला। आज़े की आंखों में अचानक एक नीला रंग आ गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे रूह की आंखों में था। अदनान ने घबरा कर इसे हिलाया। आज़े, क्या हो रहा है? आज़े की आवाज बदल गई। वो रूह की आवाज थी। तुमने कहा था कि तुम इससे प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम सच में इसे जानते हो? इसके अंदर अंधेरा है अदनान, वो तुमसे एक राज छुपा रही है। अदनान ने जोर से कहा, तुम झूठ बोल रही हो। आज़े, वापस आओ। लेकिन आज़े की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका मुंह कुछ कहने के लिए खिल रहा था। फिर इसने कहा अपनी असली आवाज में, लेकिन बहुत कमजोर, अदनान, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। जब मैं छोटी थी मेरे वालिद ने मुझे छोड़ दिया था। मैं डरती हूं कि कोई मुझे छोड़ देगा। यही वजह है कि मैं तुमसे बहुत चिमट जाती हूं। मैं अपने अंदर के इस डर को छुपाती थी, लेकिन रूह ने इसे निकाल दिया। वो अदनान ने इसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम्हारा डर मैं जानता था आज़े। मैंने तुम्हें पहले दिन से पहचान लिया था, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे ये हवेली जल जाए, चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे मैं मर जाऊं। उनकी मोहब्बत की शिद्दत ने कमरे में रोशनी फैला दी। रूह धुएं की तरह उठी और चीख उठी, ये मुमकिन नहीं, कोई इतना प्यार नहीं कर सकता। लेकिन अदनान ने आज़े का चेहरा अपने हाथों में लेकर इसे पुकारा, आज़े, मेरी आंखों में देखो, मैं हूं तुम्हारा अदनान। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी अंधेरे समेत, तुम्हारी डर समेत, तुम्हारी हर चीज के साथ। वो आज़े की आंखों से नीला रंग उतर गया। इसने इसे चूमा, बहुत गहरा चूमना, जैसे वो इसकी रूह को अपने अंदर खींच रही हो। रूह ने आखिरी बार कहा, तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, मोहब्बत भी एक कैद है। तुम दोनों अब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और एक दिन तुम में से एक दूसरे को छोड़कर जाएगा, आ तो मौत के जरिए या किसी और तरह। तब मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगी। ये कहकर रूह गायब हो गई। हवेली का दरवाजा खिल गया। बाहर सुबह की पहली किरण थी। अदनान और आज़े बाहर निकले तो उनके जिस्म कांप रहे थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बगैर बोले गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में आज़े ने कहा, अदनान, वो ठीक कहती है, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन क्या हम इस कैद को खुशी नहीं कह सकते? अदनान मुस्कुराया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट उदास थी। हाँ, ये सबसे खूबसूरत कैद है। उन्होंने 3 माह बाद शादी कर ली। वो दोनों कभी इस हवेली के करीब नहीं गए, लेकिन कुछ रातें ऐसी थीं जब आज़े अचानक उठकर बैठ जाती थी और इसे यकीन होता था कि इसकी गर्दन पर कोई ठंडी उंगलियां रखी हुई है। अदनान इसे दिलासा देता, लेकिन वो खुद भी रात को अजीब ख्वाब देखता था। वो रूह इससे कहती थी, अभी वक्त नहीं आया, लेकिन आएगा। 5 साल बाद आज़े को कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएगी। अदनान ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना सब कुछ बेच दिया और इसे इलाज के लिए बैरून मुल्क ले गया। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। आखिरी दिनों में आज़े ने अदनान को अपने पास बिठाकर कहा, अदनान, वो रूह, वो सच कह रही थी, मैं जा रही हूं, लेकिन तुम इससे कहना कि मैं वापस आऊंगी। अदनान ने रुकर कहा, तुम नहीं जाओगी। लेकिन आज़े ने इसका हाथ अपने दिल पर रखा और बोली, मेरी मोहब्बत तुम्हारी अंदर रहेगी। मैंने इस हवेली में सीखा था, मोहब्बत रूह से भी ज्यादा मजबूत होती है। आज़े मर गई।
अदनान ने इसे इसी हवेली के करीब दफन करने का कहा जहां पहली बार उनकी मोहब्बत आजमाई गई थी। इसकी कब्र पर उसने लिखवाया, यहाँ वो औरत सुबी है जिसने मुझे सिखाया कि मोहब्बत एक कैद है और मैं इस कैद में आजाद हूं। अदनान अब अकेले रहता है। वो हर माह की 14वीं रात इस हवेली में जाता है, अपनी बीवी की कब्र पर बैठता है और उससे बातें करता है। लोग कहते हैं कि उन्हें इस हवेली से दो लोगों की हंसी सुनाई देती है, एक मर्द और एक औरत की। और जब चांद पूरा होता है तो कभी कभार हवेली की खिड़की में एक सफेद पोश औरत नजर आती है जो एक मर्द के साथ बैठी होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। लेकिन जो लोग करीब से देखते हैं उन्हें पता चलता है कि औरत तो रूह है और मर्द अदनान है, जो अब खुद भी एक साया बन चुका है, क्योंकि वो रूह से कह चुका है, मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और रूह ने जवाब दिया, आओ मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत में जला दूंगी। और आज तक वो दोनों इस हवेली में रहते हैं, ना जिंदा ना मुर्दा, सिर्फ प्यार करते हुए। कोई उनकी कहानी सुनता है तो रोता है, कोई हंसता है, लेकिन जो लोग वाकई मोहब्बत करते हैं वो समझते हैं ये कहानी खौफ की नहीं बल्कि इस खौफनाक सच्चाई की है कि मोहब्बत कभी मरती नहीं। वो सिर्फ एक जिस्म से दूसरे जिस्म में सफर करती है और कभी कभार एक पुरानी हवेली में रुक जाती है ताकि आने वालों को बताए कि तुम भी किसी दिन ऐसे ही कहीं फंस जाओगे, अपनी मोहब्बत के अंदर हमेशा के लिए।